So human anatomy and physiology, we are discussing about unit 1, and in unit 1 we are discussing about homeostasis, and in homeostasis we are discussing about feedback system by which body maintain the homeostasis. And feedback system is your negative feedback and positive feedback. So in the last video we have discussed negative feedback systems. So in today's videos we are going to discuss about positive feedback systems with examples. In negative feedback we have discussed about how blood pressure is maintained by the bodies if there is a hypotension, how it sensed by the carotid sinus, baroreceptors, then there is activations of sympathetic systems, there is a activations of your renin-angiotensin-aldosterone system, and ultimately your blood pressure is increased. So in positive feedback systems we are going to discuss about positive feedback systems, and in positive feedback systems well known example is clotting. Classical example is clotting. So blood clottings. So what is the process of the blood clotting, and whenever is there any injury happens to blood vessels, blood will be leak out, and then there is a formation of primary plug. Then that primary plug is strengthened by your clotting factors and fibrins, and ultimately your blood will be clot. So whatever the stimulus is started, that stimulus is going to increase the aggregations of the platelet or aggregations of coagulating factors. So that's why it comes under positive feedback system. Positive feedback system का मतलब मैंने आपको बताया था, मतलब है कि कोई चीज़ अगर बढ़ रही है, थोड़ी सी स्टिमुलेट हुई बॉडी में, तो उसके रिस्पॉन्स में जब बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया तो उस चीज़ को और बढ़ाया. जैसे अगर क्लॉटिंग थोड़ी सी स्टार्ट हुई, आपको कट लगा, थोड़ा सा अभी हल्का सा कट हुआ, क्लॉटिंग स्टार्ट होना शुरू की, तो बॉडी रिस्पॉन्स, बॉडी को सिग्नल जाएगा, तो बॉडी क्या करेगी, उस क्लॉटिंग को और बढ़ाएगी कि आपका ब्लड रुक जाए. राइट, दैट इज़ अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम. कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो उसको बढ़ाएगी, कोई चीज़ घट रही है तो उसको और घटाएगी. राइट. सो वेल नोन क्लासिकल एग्जाम्पल इज, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज ब्लड क्लॉटिंग, अनदर वन इज चाइल्ड बर्थ. तो वी आर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन. सो यू नो, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड. सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ब्लड में आपके प्लेटलेट भी मूव कर रहे हैं, प्लेटलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, तो ब्लड हमारा क्लॉट क्यों नहीं होता इंटरनल सिस्टम में. जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तब तो क्लॉटिंग नहीं हो रही है, ना होनी चाहिए. अगर क्लॉटिंग हो रही है तो इट्स डेंजरस थिंग. पर जब भी आपको कोई कट लग रहा है, एक्सटर्नल इंजरी हो रही है, ड्यूरिंग दैट टाइम्स इमीडिएटली योर क्लॉटिंग प्रोसेस इज स्टार्टेड. जब आपको कट लग रहा है तब एकदम क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जा रहा है. सो इट्स ए ब्यूटी ऑफ अवर बॉडी. राइट. सो फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड इज कि ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता सिस्टमिक सर्कुलेशंस में. सो दिस इज योर ब्लड वेसल्स, and lining of blood vessels contains the cells, and these cells we call endothelial cells. Endothelial cells, right? Endothelial cells. So these endothelial cells are the specialized cells. They release some chemical, they release some things which prevent the clotting in internal systems, right? So what chemical they are releasing? They are releasing the chemical that name is nitric oxide, NO, right? These endothelial cell, healthy endothelial cell, I am talking about healthy endothelial cells, right? So and healthy endothelial cell are releasing some chemical, due to that आपका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता इंटरनली. राइट. तो ऐसा क्या रिलीज कर रहे हैं आपके एंडोथेलियल सेल, जो हेल्दी एंडोथेलियल सेल है, they are releasing one chemical that is nitric oxide. Nitric oxide is a vasodilator. It keeps the vessels dilate, right? Another chemical which is released is PgI2. And PgI2's nitric oxide are the repeller for the platelet. Platelet आपके blood circulation में जा रहे हैं. If platelets want to stick to the endothelial cells, so these chemical does not allow the platelet to attach to the healthy endothelial cells. अगर प्लेटलेट अगर आपके अटैच शुरू हो जाएंगे तो इट विल रिजल्ट इन द क्लॉटिंग. राइट. सो हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स हमारे कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिनकी वजह से जो प्लेटलेट ब्लड में घूम रहे हैं वो स्टिक नहीं करते ब्लड वेसल के साथ. तो वो क्या है, केमिकल रिलीज करता है हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स. तो वो केमिकल रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, PgI2. PgI2 इज प्रोस्टासाइक्लिन. हु इज रिलीजिंग, कौन रिलीज कर रहा है, हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स.
उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि जो प्लेटलेट आपके ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं वो ब्लड वेसल्स के साथ, ये एंडोथेलियल सेल्स के साथ अटैच नहीं करेंगे। अगर ये अटैच करना शुरू कर गए तो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगा, क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। अगर क्लॉट बन गया तो आगे सप्लाई रुक जाएगी, आपकी डेथ हो सकती है, राइट। तो हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स की ब्यूटी देखिए, वो इस तरह के केमिकल रिलीज कर रहे हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट को वो अटैच नहीं होने दे रहा है, तो प्लेटलेट आपके सर्कुलेशन में घूम रहे हैं। तो केमिकल इज नाइट्रिक ऑक्साइड PgI2। अनदर केमिकल इज ADP डीफॉस्फेटेजेस, ADP डीफॉस्फेटेजेस, ADP डीफॉस्फेटेजेस। So these three chemicals which prevent the adhesions of the platelet to the healthy endothelial cells, right? ये chemicals, so these all chemicals are anti-platelet in nature, anti-platelet in nature, right? They are preventing, ये prevent कर रहे हैं, किसको prevent कर रहे हैं? प्लेटलेट को। किस चीज़ से prevent कर रहे हैं? कि प्लेटलेट हमारे हेल्दी एंडोथेलियल्स के साथ चिपक ना जाए, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं फिजियोलॉजिकली, राइट। तो इसकी वजह से दिस इज द वन प्रोसेस। अनदर थिंग इज हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स आल्सो रिलीज सम केमिकल्स लाइक हेपरिन, heparin, heparin is anticoagulant in nature, right? So heparin is a cutter of thrombin, it cut the thrombin। अगर कोई आपकी इंटरनल सर्कुलेशंस में थ्रोम्बिन इकट्ठा होना शुरू हो गया या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया, थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो गया, तो क्या करेगा हेपरिन, क्या करेगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि अगर आपका प्रोथ्रोम्बिन से, अगर आप कोगुलेशंस का मैकेनिज्म देखो तो क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। एंड फाइब्रिन इज इनसॉल्युबल इन नेचर, जो कि क्लॉट, जो आपका क्लॉट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा। फाइब्रिन इज इनसॉल्युबल इन नेचर। तो अगर आपको क्लॉटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इंटरनल सर्कुलेशन में क्लॉटिंग नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी रीजन से आपकी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, ब्लड में घूम रहा है, तो उसके लिए कटर, इंटरनल कटर है हमारे पास, जो हेल्दी एंडोथेलियल सेल जो रिलीज कर रहे हैं हेपरिन। तो कोई भी ऐसी कोगुलेशंस वाला प्रोसेस अगर शुरू होने वाला हो तो ये क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, कोगुलेट नहीं होने देगा ब्लड को, राइट। दिस इज द केमिकल। अनदर थिंग, हेपरिन इज ऑल्सो इनहिबिट द कोगुलेशंस फैक्टर्स। जब हम कोगुलेशंस पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो कोगुलेशन फैक्टर, फैक्टर 10, फैक्टर 11, 12, 13 लाइक दैट वी विल स्टडी। तो अभी आप इतना समझ लो कि हेपरिन क्या करता है, थ्रोम्बिन को कट करेगा। कोगुलेशन फैक्टर कोई अगर आ रहा है ब्लड में तो उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा, राइट। देन अनदर केमिकल्स विच इज रिलीज्ड बाय हेल्दी एंडोथेलियल सेल इज TPA। Another chemical which is released by healthy endothelial cell is TPA. TPA is tissue plasminogen activators. Tissue plasminogen activators. तो ये TPA क्या करेगा, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट प्लाज्मिनोजन इनटू प्लाज्मिन। इट विल कन्वर्ट, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट प्लाज्मिनोजन इनटू प्लाज्मिन, एंड प्लाज्मिन इज कटर ऑफ फाइब्रिन। अगर बाय चांस फाइब्रिन अगर कन्वर्ट भी हो रहा है, दिस इज अ सॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिनोजन, इट कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। अगर कोई फाइब्रिन मॉलिक्यूल अगर घूम भी रहा है ब्लड में तो क्या करेगा, ये जो प्लाज्मिन है इट विल कट डाउन दैट फाइब्रिन, तो it will cut down the fibrin. So these are the anticoagulant, right? Anticoagulant. So internally our blood, our endothelial cells is providing antiplatelet and anticoagulant properties, right? So how it's antiplatelet and anticoagulant? Because it release the chemical substances like nitric oxide, prostacyclin, ADP dephosphatase, which prevent the aggregation of the platelet to the healthy endothelial cell. So it's an antiplatelet.
Another is it also release the chemicals like heparin. Heparin is a chemicals which is going to cut the thrombin if there is any thrombin is there. So thrombin is a activator of the coagulation pathway, and thrombin, in the presence of thrombin, your fibrinogen will convert into fibrin, and fibrin is insoluble protein which will provide the strengthen to your clot. तो ये क्या करेगा, हेपरिन, कोई अगर थ्रोम्बिन अगर उसको मिल गया तो उसको कट करेगा, तो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा इंटरनली. दूसरा एक और चीज़ रिलीज होती है, दैट इज टीपीए. टीपीए इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. तो ये किस चीज़ को एक्टिवेट करेगा, ये क्या करेगा, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेगा प्लाज्मिन में. और प्लाज्मिन इज ए कटर ऑफ फाइब्रिन. अगर बाई चांस फाइब्रिन अगर आ भी गया ब्लड में तो आपका टीपीए एक्टिवेट होकर प्लाज्मिन जो है, प्लाज्मिन इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा. तो अल्टीमेटली योर हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स आर एंटी प्लेटलेट एंड एंटी कोगुलेंट इन नेचर, राइट. So now we will discuss how these whenever injury happens, so how clotting process will started. So that's why I said पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता इंटरनली, पर जब कोई चोट लग जाती है तो एकदम से आपका क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. तो ऐसा क्या है, क्या होती है ऐसी चीज़, राइट. सो नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट what happens when there is injury to the endothelial cells. These are blood vessels, these are the endothelial cells, right. These are the, for example, endothelial cells. Now injuries happen, right. So injuries happens, for examples, this area, right. Okay, I will tell you like, oh, so again this is your blood vessels, healthy endothelial cells. Now this part, for example, is injured, right. Injuries happen to this part, right. So what will happen, your endothelial cells is damaged. So first response in some cases, vasoconstrictions, your blood vessels will be constrict. Why it constricts? क्योंकि आपके ब्लड को रोकना है. इंटरनली बॉडी तो ट्राई करेगी, आपको चोट लगी, ब्लड निकल रहा है, तो बॉडी विल ट्राई कि आपका ब्लड स्टॉप हो जाए. एक्सटर्नली आप भी ट्राई करते हो, कोई बैंडेज लगा रहा है, कोई खून को रोक रहा है. तो जब भी कोई इंजरी हुई, सो बॉडी रिस्पॉन्स क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन. वैसोकंस्ट्रिक्शन कैसे होगी, केमिकल रिलीज होंगे, क्योंकि आपकी नर्व्स जो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल पे वो भी डैमेज होगी. नर्व डैमेज होगी तो कुछ केमिकल रिलीज होंगे जो कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएंगे. कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों करवाएंगे, कि ब्लड सप्लाई कम हो, ब्लड लॉस कम हो. तो फर्स्ट इज वैसोकंस्ट्रिक्शन, बट इट्स वेरी ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट मीन्स वेरी फ्यू सेकेंड्स. किसी में होगी डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस ऑफ द इंजरी. इंजरी बहुत ज़्यादा हो गई तो वैसोकंस्ट्रिक्शन का टाइम ही नहीं मिलेगा, right. So it depends upon injury. So vasoconstriction will happen for very small time. That is the one step. Another thing is which happens because this endothelial cell is damaged now. और मैंने आपको बताया कि हेल्दी एंडोथेलियल सेल क्या रिलीज कर रहे थे, नाइट्रिक ऑक्साइड, PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन्स, राइट, हेपरिन, TPA, all these chemical healthy endothelial. पर अब ये इस दीज आर हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स नहीं है, क्योंकि ये तो डिस्ट्रॉय हो चुके, इंजर्ड हो चुके. तो इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स क्या ये केमिकल रिलीज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, राइट. तो अगर ये केमिकल रिलीज नहीं हुए तो इन केमिकल, ये जो प्लेटलेट घूम रहे हैं तो क्या होगा, द प्लेटलेट विच इज मूविंग इन द सर्कुलेशंस, इट्स गोइंग टू एडहियर टू द डैमेज्ड एंडोथेलियम. क्यों, क्योंकि वो जो चीज़ें प्लेटलेट को स्टिक होने नहीं दे रही थी, वो चीज़ें तो अब बन ही नहीं रही. क्यों नहीं बन रही, क्योंकि आपका एंडोथेलियल, हेल्दी एंडोथेलियल सेल डैमेज हो गए, राइट. तो क्या होगा, हेल्दी एंडोथेलियल सेल रिलीज वन केमिकल्स और फैक्टर्स दैट वी कॉल्ड वॉन विली-ब्रांड फैक्टर्स. वॉन विली-ब्रांड फैक्टर्स, VWF, वॉन विली-ब्रांड फैक्टर्स. कौन रिलीज कर रहा है, डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल, नॉट द नॉर्मल एंडोथेलियल सेल. जो कि डैमेज हुए, डैमेज एंडोथेलियल सेल्स एक चीज़ रिलीज कर रहे हैं, एक मटेरियल रिलीज कर रहे हैं जिसका नाम है वॉन विली-ब्रांड फैक्टर. तो इन्होंने एक चीज़ रिलीज कर दी, वॉन विली-ब्रांड फैक्टर्स. विली-ब्रांड फैक्टर इज रिलीज एट द इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स.
और ये जो प्लेटलेट हैं, बिकॉज देर इज नो रिपेलर फॉर द प्लेटलेट, तो प्लेटलेट इज गोइंग टू अटैच विद वॉन विलिब्रांड फैक्टर्स। तो वॉन विलिब्रांड फैक्टर्स एक तरह का ग्लू स्टिक मटेरियल है जिसके साथ प्लेटलेट एडहियर करेंगे। सो इन अर्लियर वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट, हमने डिस्कस किया था कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारा ब्लड है वो क्लॉट क्यों नहीं होता है, बल्कि जब भी हमें कोई चोट लगती है, इंजरी होती है तो इमीडिएटली क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्या है ब्लड में जो उसको क्लॉट होने नहीं देती? तो ब्लड में एक्चुअली आपके प्लेटलेट्स भी हैं और प्लेटलेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लॉटिंग के लिए। तो प्लेटलेट्स आपके मूव कर रहे हैं, बट ये प्लेटलेट आपके ये वॉल्स के साथ अटैच नहीं होते हैं। दिस इज़ अ बॉल मेड अप ऑफ सेल्स एंड दैट सेल्स वी कॉल्ड एंडोथेलियल सेल्स। इन सेल्स का नाम है एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स। तो ये हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स ऐसे कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं जो कि इन प्लेटलेट को सेल्स वॉल्स के साथ अटैच नहीं होने देते, हेल्दी एंडोथेलियल सेल। तो क्या रिलीज़ करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, PgI2, प्रोस्टासाइक्लिन्स, देन ADP डीफॉस्फेटेजेस। तो ये सारे केमिकल्स क्या करते हैं? दीज आर दी रिपेलर ऑफ प्लेटलेट्स, सो इट्स एंटी प्लेटलेट। देन अनदर पार्ट वी हैव डिस्कस इज दीज healthy endothelial also release some anticoagulant molecule like heparin, and heparin is a do the breakage of your thrombin. Thrombin is one of the important substance which convert soluble fibrinogen into insoluble fibrin, which makes your clot stable. तो heparin है, heparin is also doing the degradation of your clotting factors if it's present in the blood circulations. Then there is another molecule which is released by the endothelial cells. Healthy endothelial cell is tissue plasminogen activators. Tissue plasminogen activators activate plasminogen into plasmin, and plasmin is a cutter of fibrin. This part we have already discussed in detail in earlier video. So today we are going to discuss about when any injury happens, then how blood clotting is going to start. So whenever any injury to the healthy endothelial cells started, so what happens? For example, this is your endothelial, this is your blood vessels. Now injury happens and यहाँ पे आपको इंजरी हुई तो क्या हुआ? ब्लड तभी निकलेगा जब ये एंडोथेलियल सेल डैमेज होंगे। कोई इंजरी आपके सेल्स को डैमेज करेगी तभी ब्लड यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है। कोई चीज़ आपको चोट लगी, कुछ भी, कोई सुई रुक गई या कोई भी नोकीली चीज़ हुई, हिट हुई, तो वो क्या करेगी? इन सेल्स को डैमेज करेगी, एंडोथेलियल सेल्स को। सेल्स डैमेज होंगे तो आपका ब्लड निकलेगा बाहर, राइट। तो जब ये सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो क्या होगा? इस एरिया में आपके ये प्लेटलेट घूम रहे हैं यहाँ पे, और प्लेटलेट को कौन रोक रहा था एडहियर करने के लिए? जो ये हेल्दी एंडोथेलियल सेल मॉलिक्यूल रिलीज कर रहे थे, नाइट्रिक ऑक्साइड, PgI2s, ADP डीफॉस्फेटेजेस, ऑल दीज मॉलिक्यूल। तो आपको लगता है कि जब ये डैमेज ही हो गया एरिया तो ये केमिकल रिलीज़ नहीं होंगे। ये केमिकल रिलीज़ नहीं होंगे तो प्लेटलेट को यहाँ पे नीचे सेटल डाउन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। पहले कौन रोक रहा था? पहले रोक रहे थे आपके मॉलिक्यूल जो कि हेल्दी एंडोथेलियल सेल रिलीज़ कर रहे थे। वो मॉलिक्यूल क्या थे? वो मॉलिक्यूल था नाइट्रिक ऑक्साइड, वो मॉलिक्यूल था PgI2 दैट इज द प्रोस्टासाइक्लिन, वो मॉलिक्यूल था ADP डीफॉस्फेटेजेस। पर जब इंजरी हो गई तो इस एरिया में ये मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे तो प्लेटलेट यहाँ पे एडहियर होना शुरू हो जाएगा। पर प्लेटलेट को एडहियर होने के लिए कोई चीज़ चाहिए, तभी उसके साथ चिपकेगा, राइट। तो कैसे चिपकेगा वो? तो ये जो डैमेज जो एंडोथेलियल हुआ, ये एक केमिकल रिलीज़ करता है और उस केमिकल का नाम है वॉन विलिब्रांड फैक्टर्स, दैट वी कॉल्ड VWF, वॉन विलिब्रांड फैक्टर्स। पर वॉन विलिब्रांड फैक्टर कौन रिलीज कर रहा है? रिलीज कौन कर रहा है? जो एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुए हैं। द एंडोथेलियल सेल्स विच आर डैमेज्ड, दे आर रिलीजिंग वन केमिकल्स, वन फैक्टर। उस केमिकल और फैक्टर का नाम है वॉन विलिब्रांड फैक्टर। एंड अगर आपको सही समझना है, ये जस्ट लाइक ए ग्लू स्टिक। और इससे क्या चिपकेगा? जो प्लेटलेट आपके सर्कुलेशन में सर्कुलेट कर रहे हैं। और प्लेटलेट क्यों एडहेयर कर रहे हैं? क्योंकि इनको रोकने वाला कोई है नहीं। जब आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल है तो उसमें केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, प्रोस्टासाइक्लिन रिलीज़ हो रहा है, ADP डीफॉस्फेटेज रिलीज़ हो रहे हैं, और ये केमिकल क्या कर रहे हैं? प्लेटलेट को एडहियर नहीं होने दे रहे हैं, राइट। पर जब इंजरी हुई, कोई इंजरी हो रही है आपको,
तो क्या होगा, जो इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स हैं वो रिलीज करेंगे एक फैक्टर जिसका नाम है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। जब आपका एंडोथेलियल सेल डैमेज होता है तो उसके नीचे जो नर्व एंडिंग है वो भी डैमेज होंगी, वहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होंगे, वो केमिकल्स इनिशियली वैसोकंस्ट्रिक्शंस भी कर सकते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शंस इज हैपन्स ड्यूरिंग द इंजरी बट इट्स फॉर ट्रांजिएंट टाइम, वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बहुत स्मॉल टाइम के लिए, ट्रांजिएंट पीरियड के लिए वैसोकंस्ट्रिक्शंस भी होती है, राइट। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होंगे क्योंकि आपके केमिकल कुछ रिलीज होंगे, कुछ आपकी नर्व सेंडिंग से रिलीज होंगे, कुछ आपके स्मूथ मसल डैमेज हुए वहाँ से, और वो कंस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। फिर आपका डैमेज एंडोथेलियल एक चीज़ को रिलीज़ कर रहा है, उस मटेरियल का नाम है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। अब क्या है, ये प्लेटलेट्स के ऊपर एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है, क्योंकि चिपकने के लिए प्लेटलेट भी तो स्टिकी होने चाहिए, तो उस प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन Gp2A/2B, दिस द ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये कहाँ पे है, प्लेटलेट के ऊपर। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन किसके साथ अटैच हो रही है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ। ये आपकी ग्लाइकोप्रोटीन है, ये प्लेटलेट है, ये अटैच हो रहे हैं किसके साथ, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ। तो दिस फर्स्ट स्टेप वी कॉल प्लेटलेट एडहेशंस। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच हैपन्स, वी कॉल इट प्लेटलेट एडहेशंस, प्लेटलेट एडहेशंस। योर प्लेटलेट इज एडहियर हो रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 प्लेटलेट एडहेशंस। कैसे एडहियर हो रहे हैं, प्लेटलेट एडहेशन इज ए प्रोसेस जहाँ पे प्लेटलेट आपके एडहियर कर रहे हैं डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स के साथ, और किस केमिकल के साथ, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ। कैसे कर रहे हैं, प्लेटलेट्स के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स किसके साथ अटैच हो रही हैं, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी कॉल प्लेटलेट एडहेशन। सो सबसे पहले प्लेटलेट एडहियर हो जाएंगे। एडहेरेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप है प्लेटलेट एक्टिवेशंस। सो आफ्टर एडहेशंस इट्स गोइंग टू एक्टिवेट। सो प्लेटलेट्स गोइंग टू एक्टिवेट। सो हाउ इट्स गोइंग टू एक्टिवेट, जब ये एडहियर हुए उसके बाद ये एक्टिवेट होंगे। पहली लेयर आपकी बनी, प्लेटलेट एडहियर हो गए, नेक्स्ट इज प्लेटलेट इज गोइंग टू एक्टिवेट। एक्टिवेट कैसे होंगे, देयर इज एंजाइम्स इन द प्लेटलेट्स which is going to activate phospholipases. phospholipases एक्टिवेट होगा। phospholipases क्या करेगा, मेम्ब्रेन की डिग्रेडेशन करेगा, उससे आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, एरिकोडोनिक एसिड। एरिकोडोनिक एसिड फर्दर क्या करेगा, रिलीज करेगा और फॉर्मेशंस करेगा TXA2, दैट इज अ थ्रोम्बोक्सेन। TXA2 इज थ्रोम्बोक्सेन। तो ये जो थ्रोम्बोक्सेन है, दिस इज द प्लेटलेट एग्रीगेटर। जब इन प्लेटलेट के ऊपर थ्रोम्बोक्सेन आ जाएगा, रिलीज होगा, तो थ्रोम्बोक्सेन इज ए केमिकल विच इज प्लेटलेट एग्रीगेटर। तो और ज़्यादा प्लेटलेट वहाँ पे एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे। दैट्स वाई नेक्स्ट प्लेटलेट एक्टिवेशंस, इट गोइंग टू एक्टिवेट द प्लेटलेट। तो ड्यूरिंग प्लेटलेट एक्टिवेशंस विच केमिकल इज गोइंग टू रिलीज, वन इज थ्रोम्बोक्सेन। Thromboxane is going to release during the activations. Another chemical which is going to release is by the platelet granules is your calcium, right, which also helps in the coagulations, right. Another chemical which is going to release by the platelet during the platelet activation is ADP. ADP phosphatases. अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि यहाँ पे एक केमिकल है एंड हेल्दी एंडोथेलियल सेल रिलीज कर रहे हैं, दैट इज द ADP डीफॉस्फेटेज। डीफॉस्फेटेज वो क्या है, वो प्लेटलेट को रिपेल करता है, और ADP क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेटर है, प्लेटलेट को एग्रीगेट कर रहा है। सो ड्यूरिंग द एक्टिवेशन स्टेप्स what how it's going to activate, it going to activate the phospholipases, arachidonic acid, TXA2, right. Then calcium will release, then ADP molecule will going to release, right. Then third step is aggregations. Now platelet is going to aggregate, aggregations. तो जब ये केमिकल रिलीज होंगे इन प्लेटलेट्स के ऊपर, दीज केमिकल्स आर रिलीज, सो दीज आर दी स्ट्रॉन्ग प्लेटलेट एग्रीगेटर। तो जो प्लेटलेट आपके मूव कर रहे हैं ब्लड वेसल में, वो फटाफट यहाँ पे एग्रीगेट करते जाएंगे। लॉट ऑफ प्लेटलेट्स आर गोइंग टू एग्रीगेट, सो इट फॉर्म्स ए प्राइमरी प्लग। इट फॉर्म्स द प्राइमरी प्लग। प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे आपका ब्लड जो है वो रुक जाएगा। पर इससे प्राइमरी प्लग का मतलब है कि अगर आपने उसको
छेड़ा उस प्लग को, अगर ऐसे कर लिया या कुछ कर लिया, फिर से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा. दिस अ प्राइमरी प्लग, दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्ग प्लग, राइट. सो इट्स ए प्राइमरी प्लग विच हेल्प टू स्टॉप द ब्लड फ्लो. ये आपका ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाएगा, प्राइमरी प्लग बन जाएगा, प्लेटलेट वहाँ पे एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और आपके ब्लड सप्लाई को रोक देंगे और ब्लड फ्लो को रोक देंगे, नॉट सप्लाई. तो दिस इज प्राइमरी प्लग. अब नाउ दिस प्राइमरी प्लग इज गोइंग टू गिव द सिग्नल्स टू द ब्रेन कि वहाँ पे इंजरी हुई है. अब दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक. तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसके रिस्पॉन्स में वो चीज़ और बढ़ेगी. तो मीन्स जो ये आपका प्लग बना प्राइमरी प्लग, ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा. तो कैसे स्ट्रेंथन होगा? आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा, ब्रेन को सिग्नल जाएगा, इट्स गोइंग टू एक्टिवेट योर कोगुलेशंस पाथवेज. कोगुलेशंस पाथवेज, कोगुलेशंस पाथवे. Coagulations pathway is your intrinsic pathway and extrinsic pathways. तो उसमें there are different coagulating factors are going to activate, factor 8, factor 9, factor 10, and then finally what happens in coagulation pathway, prothrombin is going to convert into, activate into thrombin, prothrombin into thrombin. And this thrombin, in the presence of thrombin, there is a one protein that is the fibrinogen, and this protein is going to convert into fibrin, and fibrin is a insoluble protein. Fibrin is your insoluble protein, fibrinogen is soluble protein. तो फाइनली जब ये फाइब्रिन का मैश बन जाएगा यहाँ पे, तो ये जो आपका ब्लड फ्लो रुका है, प्राइमरी प्लग बना है, इट विल बी स्ट्रेंथन. तो ये आपने देखा होगा जब आपको चोट लगती है तो थोड़ा सा हल्का सा, फिर 1-2 दिन में आपका क्लॉट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है. तो योर कोगुलेटिंग पाथवे इज प्लेइंग ए रोल. तो कोगुलेटिंग, दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर पॉजिटिव फीडबैक. तो हुआ क्या कि उसके रिस्पांस में आपका ये प्राइमरी प्लग जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया. दैट इज योर पॉजिटिव फीडबैक, राइट. सो अगेन इफ आई टेल यू अगेन इट क्विकली, क्या हमने अब तक बात की कि हम पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव फीडबैक में वन ऑफ द मैकेनिज्म इज योर क्लॉटिंग, राइट. तो क्लॉटिंग में क्या हो रहा है? पहले तो हमने बात कर ली कि क्यों ब्लड वेसल्स ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता इंटरनली, पर जब कोई चोट लगती है तो आपका ब्लड क्लॉट कर जाता है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है हमारा हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स कि जिसकी वजह से प्लेटलेट प्लग नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से आपकी क्लॉटिंग नहीं हो रही है. पर जब कोई इंजरी हुई तो आपके जो सेल्स हैं एंडोथेलियल सेल वो डैमेज हो गए. डैमेज एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुए तो नर्व एंडिंग भी डैमेज होगी, वहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होंगे लाइक सेरोटोनिन, दे विल डू द वैसो कंस्ट्रिक्शन. तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी. अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो आपका थोड़ा सा ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, राइट. देन डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल विल रिलीज वन केमिकल्स और फैक्टर दैट वी कॉल वॉन विलिब्रांड फैक्टर. इट जस्ट एक्ट लाइक ए ग्लू स्टिक. ग्लू स्टिक की तरह ये काम करेगा. इससे क्या होगा कि अब ये जो प्लेटलेट जो सर्कुलेट हो रहे हैं आपके ब्लड्स में, नॉर्मली दे आर नॉट गोइंग टू एडहियर, ये आपके वॉल्स के साथ अटैच नहीं हो रहे हैं. पर जब आपका एंडोथेलियल सेल डैमेज हो गए तो वो जो केमिकल इसको रोक रहे थे वो बन नहीं रहे हैं, लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्ट्रासाइक्लिन और एडीपी डीफॉस्फेटेजेस, वो केमिकल बन नहीं रहे हैं. तो अब क्या हो रहा है, ये प्लेटलेट कहाँ पे आ रहे हैं? नज़दीक यहाँ पे आ रहे हैं, वॉन विलिब्रांड फैक्टर के पास. और प्लेटलेट के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन है दैट विल बिकम एक्टिव, और ये ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज अ GP2A/2B, और this is the first step that will be called platelet adhesions. Platelet is going to adhere, right. So platelet adhesion is the first step. Platelet adhesions. After platelet adhesions, your platelet is going to activate. So second step is activations. Second step is platelet activations, and during activations what happens? Phospholipases are going to activate. Phospholipases will do the degradation of phospholipid and arachidonic acid is formed, and arachidonic acid will further put results in the formation of TXA2, that will be called thromboxane. Thromboxane, right? This is the one of the method by which platelets are activated. Another is it's going to release calcium, it's going to release ADP. These all chemicals are the strong aggregators of the platelet. So that's why third step is, first step is this platelet adhesion,
second is activation, third one is platelet aggregations. So your platelets are going to aggregate. तो अब क्या होगा, प्लेटलेट यहाँ पे पहली लेयर बनी तो फटाफट वो सारे जो प्लेटलेट ब्लड्स में सर्कुलेट हो रहे हैं वो फटाफट वहाँ पे एग्रीगेट होते जाएंगे तो आपका ब्लड जो लॉस हो रहा है, खून जो निकल रहा है इंजरी के बाद, वो आपका बंद हो जाएगा, एंड दैट वी कॉल्ड प्राइमरी प्लग. तो एक प्राइमरी प्लग बन जाएगा. तो प्राइमरी प्लग आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको अगर आप खरोचोगे या कुछ करोगे तो दोबारा से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा. तो बॉडी सिग्नल जाएगा ब्रेन में, एंड दिस प्राइमरी प्लग विल गेट द स्ट्रेंथन. कैसे स्ट्रेंथन होगा, आपके कोगुलेशन पाथवे एक्टिवेट हो जाएंगे. सो कोगुलेशन पाथवे में वी विल डिस्कस इन डिटेल, इंटरचेंजिंग पाथवे, एक्सचेंजिंग पाथवे. तो उन पाथवे में क्या हो रहा है, फाइनली देयर इज ए प्रोथ्रोम्बिन इज एक्टिवेटेड इनटू थ्रोम्बिन, and thrombin is going to convert fibrinogen into fibrin. Fibrinogen is a soluble, fibrin is insoluble. तो ये insoluble fibrin यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा and this plug will be become stronger. तो क्या कर रही है बॉडी कि आपका प्राइमरी प्लग बना उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन दे रही है. दैट्स वाई दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कोई चीज़ बढ़ रही है तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में उस चीज़ को और बढ़ाएगा, दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक. और नेगेटिव फीडबैक में कोई चीज़ बढ़ रही है उसको कम कर देगा, कोई चीज़ कम है उसको बढ़ा देगा, दैट इज योर नेगेटिव फीडबैक, राइट. सो दिस अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ योर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स. Another examples in the positive feedback system is, classical example is contractions of uterine muscles during the childbirth. That is the another examples. So going to discuss another example of positive feedback systems. Positive feedback systems. One example we have discussed clotting. So I hope you understand कि प्राइमरी प्लग को स्ट्रेंथन कैसे मिल रही है, बॉडी और ज़्यादा उस चीज़ को स्ट्रेंथन कर रही है. दैट इज़ योर पॉजिटिव फीडबैक. अनदर एग्जाम्पल इज, एज आई सेड, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्राइन मसल्स. कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्राइन मसल्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. जब चाइल्ड बर्थ होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, आपके यूट्राइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हल्की हल्की स्टार्ट होती है. बेबी का हेड वो यूट्राइन से टकराता है, दैट रिजल्ट इन लिटिल विद कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्राइन मसल्स. यूट्राइन की मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, उसका सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन में. तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किए हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, सिग्नल्स विल गोज टू द ब्रेन. कहाँ गया सिग्नल, ब्रेन में. अब ब्रेन विल डू समथिंग कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर पॉजिटिव फीडबैक. तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई वो कॉन्ट्रैक्शन और बढ़नी चाहिए. तो हाउ दिस कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग. तो सिग्नल गया आपका, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई है तो ब्रेन में गया, ब्रेन ने उसके रिस्पॉन्स में क्या किया, इट विल डायरेक्ट योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी to release one hormone, and that hormone name is oxytocin. That is your hormone. हार्मोन कब रिलीज कर रहा है, जब आपकी यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रही है. तो ब्रेन को सिग्नल किया, ब्रेन ने क्या किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करवाया. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने एक हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन. अब ऑक्सीटोसिन कहाँ पे एक्ट करेगा, यूट्राइन मसल्स पे, और क्या करेगा फाइनली, कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उस कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ाएगा. तो वी आर गोइंग टू स्टडी कि जब ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल पे लगता है तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे करता है यूट्राइन मसल्स की. तो अगेन मैकेनिज्म इज हाउ ऑक्सीटोसिन इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्राइन मसल्स. सो ऑक्सीटोसिन हैज टू बी एक्ट ऑन इट्स रिसेप्टर्स. सो ऑक्सीटोसिन हैज ए रिसेप्टर्स. इसके रिसेप्टर्स हैं कहाँ पे हैं, यूट्राइन मसल्स पे. वो रिसेप्टर्स कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज द GPCR. जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की हम जब भी बात करते हैं तो आपको फर्स्ट दिमाग में आना चाहिए कि ये रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ए सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर. कुछ रिसेप्टर होते हैं जो सेल्स के अंदर होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर, राइट. तो GPCR इज ए सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो कि सेल सरफेस पे है. एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7. दैट्स व्हाई 7 बार ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है. दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल्ड इट ए 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर.
स्नेक की तरह दिखता है, सांप की तरह दिखता है, तो इसको हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं। वी हैव डिस्कस इन अर्लियर क्लासेस एज वेल। इसकी दो डोमेन है, एक है सेल के बाहर, इस डोमेन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर वाली डोमेन। ये डोमेन है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर डोमेन। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को जी प्रोटीन कपल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जी प्रोटीन कपल है कहीं ना कहीं पे, जी प्रोटीन अटैच है। तो कौन सी डोमेन में अटैच है? इंट्रासेलुलर डोमेन में। तो यहाँ पे आपकी जी प्रोटीन इज अटैच, coupled, and that's why we also called it a GPCR, G protein coupled receptor. But where G protein is coupled? Intracellular domain. और कितनी डोमेन है? दो डोमेन है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में क्या अटैच होगा? योर लिगेंड। लिगेंड इन दिस केस इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज योर लिगेंड विच इज गोइंग टू बाइंड विद द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में जब भी बाइंड किया आपका लिगेंड, इसने सिग्नल को ट्रांसमिट किया बाहर से सेल के अंदर, सेल के अंदर किया। G protein is available in three forms: GS, GI, GQ. So depending upon the ligand, आपका ligand GS को स्टिमुलेट कर सकता है। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा उसमें क्या हो रहा था? GS को स्टिमुलेट कर रहा था आपका ligand। GS को जो हमने डोपामिन और डोब्यूटामिन के मैकेनिज्म देखे थे कि हाउ दैट रिजल्ट इन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उस केस में GS इज स्टिमुलेटेड बाय डोपामिन और डोब्यूटामिन। जीएस स्टिमुलेट होता है तो एडिनाइल साइक्लेज स्टिमुलेट होगा, एडिनाइल साइक्लेज स्टिमुलेट होगा, एटीपी की डिग्रेडेशन होगी, एटीपी डिग्रेड होगा तो सीएमपी बनेगा, सीएमपी बनेगा तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होंगे, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा तो आपके कैल्शियम चैनल की ज़्यादा फॉस्फोराइलेशन होगी, ज़्यादा फॉस्फोराइलेशन होगी, ज़्यादा टाइम के लिए कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा, ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। बट ऑक्सीटोसिन के केस में विच आइसोफॉर्म इज गोइंग टू एक्टिवेट? दैट इज GQ, नॉट दी GS। इस केस में जब आपका ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल्स पे अपने रिसेप्टर पे लग रहा है जो कि आपका GPCR रिसेप्टर्स है, इट्स गोइंग टू एक्टिवेट GQ। जब आपकी GQ आइसोफॉर्म एक्टिवेट होती है देन इट रिजल्ट्स इन एक्टिवेशंस ऑफ एंजाइम्स दैट इज अ फॉस्फोलाइपेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस, राइट? फॉस्फोलाइपेजेस इज गोइंग टू एक्टिवेट एंड इट्स गोइंग टू डिग्रेड योर phospholipids into two products, IP3 एंड DAG। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। फॉस्फोलाइपेज क्या है? एंजाइम है। ये एंजाइम किसी चीज को तोड़ रहा है, किसको तोड़ रहा है? फॉस्फोलिपिड को। फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ रहा है तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन प्रोडक्ट का नाम है IP3 एंड DAG। IP3 स्टैंड्स फॉर इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। IP3 इज इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। DAG that will be called DAG. DAG is diacyl glycerol, diacyl glycerol, diacyl glycerol, and these are the secondary messenger. ये secondary messenger है। प्राइमरी मैसेंजर क्या है? प्राइमरी मैसेंजर इज ऑक्सीटोसिन। प्राइमरी मैसेंजर जिसने सिग्नल लेके आया वो कौन था? प्राइमरी मैसेंजर इज ऑक्सीटोसिन। ये आगे जब ये यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे बाइंड किया, उसके बाद जो सिग्नल आगे कौन लेके जा रहा है? सेकेंडरी मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल क्या हुए? IP3 एंड DAG। तो इस केस में IP3 एंड DAG आर फॉर्म। अब IP3 आगे कहाँ पे एक्ट करता है? IP3 हैव ए रिसेप्टर्स सेल्स के अंदर। एक ऑर्गेनेली पे IP3 के रिसेप्टर हैं, उस ऑर्गेनेल का नाम है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So endoplasmic reticulum has a receptor, particularly smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum have a receptor for IP3. तो IP3 जो बना वो कहाँ पे बाइंड करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब एक्टिवेट होगा, आपको कल भी बताया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन। तो इसके अंदर क्या है? कैल्शियम है। तो ये कैल्शियम क्या होगा? रिलीज होगा। कैल्शियम रिलीज होगा देन इट विल रिजल्ट इन contractions of your uterine muscles. In this case, your what contraction you are getting? You are getting the contractions of uterine muscles. और ये पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है क्योंकि आपकी पहले क्या स्टार्ट हुई थी? यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन हल्की हल्की स्टार्ट हुई, उसने सिग्नल ब्रेन को दिया, ब्रेन ने क्या किया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ पे एक्ट कर रहा है? यूट्राइन मसल पे। उसके रिसेप्टर क्या है? GPCR। तो ऑक्सीटोसिन जब अपने एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे लगा तो उसने एक्टिवेट किया इस रिसेप्टर को, जी प्रोटीन पर्टिकुलर उसने एक्टिवेट किया। GQ आइसोफॉर्म को, GQ जब भी एक्टिवेट होता है, कोई भी लिगेंड एक्टिवेट करे, चाहे ऑक्सीटोसिन है चाहे कोई भी मॉलिक्यूल एक्टिवेट करे, तो क्या होगा? हमेशा फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट होंगे। फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट होंगे
वो फॉस्फोलिपिड को तोड़ेंगे दो पार्ट्स में, IP3 एंड डैग। IP3 इज योर इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, डैग इज योर डाइएसाइल ग्लिसरॉल। अब जो IP3 है उसके रिसेप्टर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो वहाँ पे अटैच होंगे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करेंगे। कैल्शियम जितना ज़्यादा रिलीज होगा उतना ही आपकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। दैट इज द मैकेनिज्म। तो वहाँ पे आप जब चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो आप चाहते हो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करे और बेबी कम आउट हो, राइट? दैट इज द वन। अनदर इज योर डाइएसाइल ग्लिसरॉल। Diacyl glycerol is going to activate your protein kinases. Protein kinases. Protein kinases. So diacyl glycerol is going to activate your protein kinases. Protein kinases is going to do the phosphorylation of your calcium channel. तो वही वाला मैकेनिज्म आ गया। प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट हो रहे हैं, वो किस चीज़ को फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं? कैल्शियम चैनल को। कैल्शियम चैनल कहाँ पे है? मेम्ब्रेन्स पे। तो अब ये अगर फॉस्फोराइलेट हो गया कैल्शियम चैनल, तो ये कैल्शियम चैनल ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ओपन होगा। ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ओपन होगा तो कैल्शियम अंदर ज़्यादा आएगा। कैल्शियम अंदर ज़्यादा आएगा तो आपके यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच ऑक्सीटोसिन इज गोइंग टू रिजल्ट इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. Your uterine contraction will happens and childbirth will happen, right? So this is the another examples of your positive feedback system. So again positive feedback system में कोई चीज़ बढ़ रही है, हल्की सी बड़ी बॉडी में, सिग्नल गया ब्रेन में, उसकी रिस्पॉन्स में वो चीज़ और बढ़ेगी, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक अगेन कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं नेगेटिव फीडबैक में. नेगेटिव फीडबैक में मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है और आपकी बॉडी ने उसको कम किया, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर नेगेटिव फीडबैक. कोई चीज़ बढ़ी थी उसको कम किया. ब्लड प्रेशर आपका कम है, बॉडी ने उसको बढ़ाया, तो वो भी एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक. कोई चीज़ बढ़ी उसके अपोजिट डायरेक्शन या घटी, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक. बढ़ी घटी, घटी बढ़ी, राइट? सो दैट इज योर नेगेटिव. पॉजिटिव फीडबैक कोई चीज़ स्टार्ट हुई, कम हुई या बढ़ रही है, अगर कम हुई तो और ज़्यादा कम करेगी बॉडी, दैट इज योर पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक डजंट मीन्स कि कोई चीज़ बढ़ी है तो वो बढ़नी ही चाहिए हमेशा. कोई चीज़ कम हो रही है तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी ने उसको और डिक्रीज कर दिया, पर देर आर नॉट दैट क्लासिकल एग्जाम्पल. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ योर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम. थैंक यू.